Jai Shri Mata Ji, Jai Shri Dr. Mata Suresh Ji. Nigam, Dr. Rekha Nigam, thank you so much. We lovingly call you with respect, uncle and auntie. We'll keep it formal and formal. Keep it keep our interview today in English and in Hindi. Essentially talking about your times with Shri Mataji, which Dr. Nigam you have told us briefly in our first interview. We'd like to take further from there. Um, लेकिन कुछ चीजें जो हिंदी में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं वो उसके लिए इंग्लिश में शब्द परिपूर्ण नहीं है इसलिए प्लीज use both the languages and to describe your phenomenal, absolutely unbelievable times with Shri Mataji Nirmala Devi. We'd like to also welcome Mrs. Dr. Rekha Nigam for being with us. It Shall is we not start? it is not Rekha Nigam, it is Renu Nigam. I'm sorry, Renu Nigam. I don't know why I've said Rekha Nigam. I'm sorry about that. Dr. Renu Nigam and Dr. Suresh Nigam. So welcome to our Golden Memories channel for this session by the grace of Shri Mataji. Would you like to start this session, Dr. Renu Nigam, with your first meeting, please, with Shri Mataji, if you don't mind? You know about me, you can ask about her. Ji. My first meeting with Shri Mataji was again the first time I saw her was in the auditorium where she came to Delhi and we had just joined her yoga a few months back earlier. So we were very keen to meet her and actually see her because we had seen the photographs. And so my first meeting was at the auditorium. Of course, as Dr. Nigam told you, that we were absolutely spellbound. We were just looking at her with our mouth open and not moving, even blinking our eyes. And she kept on talking. I don't remember a single word from that lecture, not a single word, because I was so enamored by her aura, by her personality, because she was just looking like a very loving woman standing in front of me. That's it. Yes. And then ultimately, when she asked us to take a bandhan, and she saw Dr. Nigam, he could raise his hand. So she called him. And I was fortunate being his wife. I also accompanied him because he needed help at that time. He could not walk on his own. So I also went to the stage and he sat in front of Shri Mataji. And I was just, on the side and slightly on the back side of Shri Mataji because my whole interest was see how my husband can get all right, Of I was course. not at all interested in what will happen of me or whatever. My entire attention was on him. And then she only asked me one question. Do you have a guru? I said, no. She said, याद करके बताओ तो मैंने कहा कि मेरे तो कोई गुरु नहीं है but I remember once going to there's a very beautiful Tirtha near Sitapur which is known as Namish. Yes. Nemisaran. Normally उसको नीम सार बोलते हैं हम लोग हिंदी में बाकी जी. उसको नामिश बोलते हैं वहां पे माँ आनंदमयी का प्रोग्राम होता था तो उसमें हमारी जो बड़ी मौसी थी माय मदर एल्डर सिस्टर she was a staunch follower of माँ आनंदमयी तो वो पापा और मम्मी को फोर्स करके उन्होंने कहा कि तुम लोग आओ since Papa had already had a paralysis and I was attending on to him, so I also accompanied him, my brother and me, and my parents. So I said, I only remember that. And then I told her, I said, yes, I have a pendant of hers, which I had kept under Dr. Nigam's pillow when he was unwell, when he had this stroke. So when you went to this program in Neemsar, this was before your marriage to uncle, to Dr. Long before I was married. So this is years 3-4 before. years. So I had that pendant, and when he fell ill,
So that was because before that I was not a very spiritual person. We don't have very spiritual background from my Mhm. parents' side. Although my grandmother and my great grandmother, my Ji. father's daddy, they had a mandir in the house. And every Hmm. day there was a puja going on. Aaj Ekadashi hai, aaj Pranana hai, a prasad banta. So my interest was, being the youngest in the family, my interest was there कि वहाँ जाके शाम को आरती के टाइम पे घंटा बजाया और प्रसाद लेके आ जाओ. That was it. Otherwise, my father was just not interested because there was a background. But his दादी सुबह 4 बजे नहाती थी, गीली धोती पहन के पूजा के कमरे में बैठ जाती थी और उनकी जो मेड थी वो बाहर Hmm. बैठती थी और वो वहां से पूरा उनको बताती थी. उनको बीवी बोलते हैं, बीवी आज फलाने की दुल्हन भाग गई. वो बोलती वहां से दैया दे दैया और फिर राम 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 करने तो लगती. वो पूजा So my करती थी father और used to tell me, my between the puja. between the puja, when she was doing puja, वो माला फेरती थी. वो पीछे से महारानी जो थी वो बोलती थी, बीवी हाँ. वो फलाने की बहू जो है ना वो भाग गई. कहती दैया दैया रे दैया, हे भगवान दैया रे दैया और फिर राम 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 करके फिर माला जपने लगती. सो माय फादर टोल्ड माय मदर कि नहीं ये पूजा है, ये पीछे जिंदा अखबार बैठा हुआ है और ये पूजा कर सही. रही. सारी ढकोसलेबाजी है, कोई नहीं पूजा हाँ. करेगा घर में. हाँ. So that was the background. Nobody used to, except for कि जब वो जन्माष्टमी हो रही है और शिवरात्रि Hmm. हो रही है तो मंदिर में खूब सारा प्रसाद होता है. We are very fond of चन्ना मिर्चन और तो वो Hmm. पूरा मटका भर भर के आता था. खूब पी लो खा लो. That was it. Hmm. That was the only concept of religion and Yes. worshiping God. Yes. So I Whereabouts knew was this? In Lucknow? uh, Because that is a connection we have. You're from Lucknow. So was this your I have parents' house in no. Lucknow? My parents were in Sitapur. Acha. And we have studied all through in Lucknow. My Okay. Nanaji was in Lucknow. So actually, right from the age of 12, I was in the boarding, and then he was my local guardian. So Of course. till I got married, I was in Lucknow only. Okay. So that was the background. So I wasn't very spiritually, inclined towards Anand Mahima. But since that was the only thing I had, and I was very Yeah. scared because I was very young. And Hmm. I could see my future as absolutely dark because two young children, one was in 1980, one was 6 years old, and the other, my daughter was 2 years old. So, and I was a housewife. I'm not Hmm. a doctor, by the way, Sushmita. I'm just a Okay. art graduate, and I was married as a housewife only. Thank you so much for correcting that. Yeah. So I had no profession. My father was very, egoistic that way that I marry my daughter when they don't have to work. So No, but that that is way, so important because you raised a very important point, and because these days it has become mandatory for the girls to get married and work, so they're juggling work, home, everything. So totally understand that, and that's such an immense work in itself, although very, very underrated, especially in our country, in India, and even in the West, really. So please carry on. so so I wasn't inclined towards anybody, but that's Uh-huh. the question she asked me, so I gave her a reply. I said, yes, I remember I have a pendant which I have put under his pillow. So she Acha. looked at me and she said, उसको फेंक दो. Hmm. मैंने literally जोर से कहा, फेंक दो उसको. And Sushmita, believe me, now I can tell you the truth. I was scared. I didn't Hmm. know what to do because I had no experience of the Mataji by that time. And Okay. I didn't know who Anand Mahima was. And this Yes. has happened in front of me. My husband had become handicapped. I didn't know whom to trust Yes. and do what. So Yes. the first day I came back home and I was in such a, confusion, what to do and what not Hmm. to do.
So I only prayed to God Almighty. I said, भगवान मैं नहीं जानती हूँ क्या सही है क्या गलत है, पर अब उन्होंने कहा तो मैं फेंक देती हूँ, बाकी आप संभाल लेना, मुझे नहीं मालूम Wow. what is right and what is wrong. And Hmm. honestly, before having any experience, how would you know who's right and who's wrong? And especially Yes. after such a big, trauma in my life, I was really scared. Yeah. And so ultimately, Of course. I made a point. The second day also, I could not throw because I had to go and throw it in Jamnaji. And that was very far off from my house. So the second day again, we went for the program and she looked at me, she said, फेंक दिया? I said, अभी नहीं फेंका पर फेंक दूंगी. She looked at me, Wow. she said, उसको फेंक दिया? मैंने कहा अभी नहीं फेंका, फेंक दूंगी. And I was still scared whether I should tell her the truth or not. मतलब मैं झूठ बोल दूं कि फेंक दिया या मैं सच बोलूं कि नहीं फेंका. But it was an immense confusion anyway. But उस दिन क्या हुआ कि हम लोग जब लौट के आए and we had a very small photograph of Himachi और उसको एक कॉफी टेबल का स्टूल साथ पे रख के against the wall एक कैंडल जला दी and we were foot soaking. एक तरफ से दरवाजा था डोर उसका बेडरूम का और दूसरी साइड पे था बाथरूम का दरवाजा and both of us are Sushmita, that was my only experience as a third yogini, which I pray to have it once again. We were Wow. drenched in vibration, drenched. मतलब जैसे Wow. करने लगे ना आंधी आ गई. And अरे वाह. me like a fool, I was looking at the door. इधर से हवा आ रही कि इधर से हवा आ रही, कहाँ से हवा आ रही. And then, हाँ जी. trying to be very intelligent, I looked at the candle. मैंने कहा ये तो flicker नहीं कर रही है. हाँ. तो हवा जब चल रही है तो कैंडल क्यों नहीं flicker कर रही है. मतलब all the time. With such beautiful vibrations. I kept on analyzing from where this breeze is coming, but I felt very nice, very nice. तो दूसरे दिन सच Wow. बोलने की हिम्मत पड़ गई कि अच्छा जब पूछे तो लेट मी टेल हर द ट्रूथ. अच्छा आज नहीं अभी नहीं फेंका तो फेंक दे. And she said nothing. She said nothing after that. Second day में जाके फेंक. वहाँ हाँ. पे जमुना जी में गए भगवान से प्रे किया भगवान जो सही हो वो करवा दीजिएगा हमें नहीं मालूम. ठीक. उसके बाद सुष्मिता उन्होंने हमसे पूछे नहीं. She Wow. didn't ask me at all कि तुमने रखा कि फेंका क्या किया. हाँ. Anyway, that was my first experience with Himata ji. So where और was this उसके बाद program? Is this in Noida or where was no. this? This was in Delhi in commanding of the church. No, it was in Kalka ji. अच्छा. This was her Kalka first ji. program. Kalka ji. Kalka ji. In 1982. It was in a hall 81. and we were sitting in the 81. first row. We were sitting in the first row. और बच्चों को घर पे छोड़ के गए थे because हाँ जी. I had to, sort of be Of as a course. support to Look him. He could after. not walk Yes. properly. So that was my first experience with Kem Mata ji. उसके बाद तो हमने कुछ छोड़े नहीं. दिल्ली में जितने दिन नहीं सारे प्रोग्राम अटेंड किए. And since you were talking to Dr. Nigam regarding our experience as a couple with Kem Mata Ji. ji, Very so I important. must tell you one thing more that हाँ in जी. 83 there were some weddings happened in Delhi. And Shri हाँ. Mataji asked us कि आप लोग फिर से शादी कर दीजिए. So अच्छा. 83 we got remarried in Sahaja Yoga. Amazing. And my son was sitting on the ghodi with Dr. Nigam. And my अरे वाह. daughter, in हाँ. 83 she was like 5 years old, 5.5 years old. हाँ. And she was very enamored by my dressing क्योंकि वो सारा bridal makeup and सारा कुछ वही Oh. सारी ज्वेलरी हाँ. पहनाई गई थी. So she was जी. just fiddling with my jewelry. And I was sitting there as a bride. Kuto also got married the same year in the same group. अरे वाह. Oh, We nice. got married. Yeah. We got married together. And then we Oh. had a very small house in that apartment, 2-bedroom house. And we were 22 people living in that house, where we gave a 1 bedroom to Guido as a newly married couple, and we had Yeah. 1 bedroom and a drawing dining. और रात में जब हम लोग सोते थे
So we used to put the dining chair on top of the dining table और उसके नीचे भी घुस के बिस्तर लगा के सारे जमीन पर बिस्तर लगा 22 people. And Amazing. since morning till the evening, we were busy with either going to see Mataji or attending the program in the evening. रात में खिचड़ी बनती थी और सब लोग खा के सो जाते थे. अरे वाह, That was it. हाँ. तो 22 लोग 20 सारे सहयोगी हर जगह से आए हुए, जैसे गिरडे और उनकी वाइफ. हाँ, I can tell you, जी, it was please. all, they were all, Rustam was number one, then Gregwa, Judo, Dr. Spyro, all these persons, they were, Matthias was not there. Matthias was there. He was not there. In Azad apartment, he was not there. All these persons, the beginners, अच्छा. they were all there. In 83, Russians didn't come. They came later on. All of them stayed with us. And do you know why Shri Mataji asked us to marry? The reason was this, Oh, excellent. that there were 13 marriages fixed by Oh, the collective. So she said 13 is not a good number. एक और शादी कर दो. तो हम लोग बैठे थे, बोले इनकी शादी करवा दो. That wow. is how we got married. Well, congratulations. So many years later, that's amazing. Thank you. So Thank you 14 very much. वाह. So ये नंबर 13 जो आप बता रहे थे, श्रीमाता जी ने इस विषय में क्या कहा? Because the jury is out on this one. 13 is not auspicious, so It was Yeah. just a passing comment. He did not emphasize on it कि होना ही तेरा नहीं होना चाहिए. It was just a yeah. passing comment. ये सब तेरा हो रहा है, एक और कर दो, ऐड कर दो. हाँ, उनका अच्छा हाँ, डॉक्टर नहीं है, और भी शादी कर दीजिए. हाँ, It was हाँ. like that. Fantastic story. By that So- time, we were already 2 years in Raj Yoga, 81 to Yes. 86. So What were the vibrational or subtle changes that you noticed after this Sahaj marriage? Was there any? yes, there were. Yeah, please share with us, because I mean, you were well into, I mean, you were married for a few years, the children were there, and you were hosting the collective, spending so much time with Shrimataji. What was it like? Please build a picture for if us. you ask 90 me, if you ask me personally, I cannot say anything about Dr. Nigam, but it was like, for me, on Ji. vibrated level, I don't think I can tell you anything, but for me, it was like a festive time. कि माता जी Yes. आने वाली आ गई, and then spending time with her, spending time with her yogis, and cooking for them, and then again going for the programs. And by that time, I had a little privilege of doing her arti also, and putting the Wow. garden for her, So I felt very privileged and very, very happy, very happy. Yes. A lot was happening, but on vibratory level, I cannot recall कि मेरे vibrations बढ़ गए थे कि घट गए थे कि क्या हुआ था ये. This I really don't remember. But But you were it in the was like flow, being the Gruha Lakshmi. I mean, cooking, hosting everyone, it's not an easy task. And just, Sushmita, just being. Dr. Hanji. Rustam was such a sweet person. He said, "So Uh-huh. कितने लोगों का खाना बनाओगी?" So what he did was he used to make a khichdi with whatever vegetable was available in the house. अरे वाह. Everything. हाँ, आलू, हाँ. गोभी, बैंगन, भिंडी, टमाटर, जो कुछ भी होता था, सब उसमें डाल देते थे. And हाँ. probably it was the vibrations that the khichdi इस used to taste so good. सब्जी वाली पुलाव को जो लखनऊ में पापा मम्मी हम लोग जब खाते थे, तो दो चीजें होती थी जब थक जाते थे और कुक नहीं आई या करना है, तो खिचड़ी बनती थी या फिर तहड़ी उसको बोलते थे, जिसमें सब्जी हाँ. डालते हैं. So this I was a tell you, nice that's a very, combination. Do you know even today, sometimes Hanji. when we don't want to eat heavy food, we जी. tell the cook here, वो रुस्तम वाली खिचड़ी बना दो. That Exactly. became so popular. Even today we say Rustam wali khidmat. And all my relatives, they know about it. Because so full of. There was no proper cooking. पतीला No. चढ़ाया, प्याज डाला, जी.
उसमें दाल चावल डाले गए, उसी में सारी सब्जियां डाली गई, भुना, नमक हल्दी डाली और उसको पका दिया, that's it. साथ में दही और वाह प्याज के 4 टुकड़े करके, बिकॉज वी यूज्ड टू गेट सो टायर्ड बाय आप द टाइम वी शुड कम बैक. 2 बज गए रात में, 2:30 बज गए, तो आप फिर 8 बजे जाना है. तो सही है ऐसे खाना बनता था एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, और इतना खाते थे सब लोग हंसते रहते. सही है वाह क्या समय I have a very beautiful experience of Tahri also that I'll tell हाँ you जी later on. You continue. This is too early ओके a journey. I'll tell you when I went to ओके Russia with what happened with the Tahri business. Okay, so we'll talk about that later. Now, Dr. Nigam, would you like to share your experience while Auntie was busy hosting and just enjoying the festivities with everyone, with Srimata ji doing? I can absolutely feel the palpable joy and the festive feeling that she would have had that time. You can feel it now as we talk. What was your experience then? I told you in my last lecture, there's so many more I can tell you. There's Yes, nothing please but do the best. do share the ones that you haven't. I wanted to share with you some deep things, which Yes, actually we're coming to that. at that time even I didn't know what is happening. But these were the deep Hmm. things. When she told about Ji. certain things, we could not understand at that time. Yes. But today, after say 40 years, 30 years, I am now understanding. The latest one is this, which I feel, and you must have also Yes. noticed. Those yogis who are opening a new center or they are running a center, in their Ji. lecture, they will say, Mother said so in this lecture. Sri Mataji said, don't wear this thing, don't do this thing. Sri Mataji said, don't eat this thing. Or get up at 4 o'clock in the morning. If you don't get up, you can never become Sahajogi. And Sri Mataji said, everybody is talking now. In the beginning, I Yes. also used to say that mother said so, that you should get up and do meditation and all these things. But in later Ji. years, that is very important. She, in many of Anji. her lectures, she said, don't say that mother said so. If you remember, Yes. she said Yes. in many lectures, She has. don't say that mother has said so. You say Yeah. what you have to say. This point I Yes. could not understand at that time. Reason being, we all used to say mother said so, mother said so. Now I realize why did Yes. she say so. Now she wants to say, she said, say what you have to say. First experience all these Okay. things. Experience Yeah. them and then you tell to people, this will happen, this will happen, this will. You must be capable of telling and informing them that this thing will happen when you will do this thing. This is the most important point Yeah. for those persons. Now they must say, it is like this. और Yes. जब कोई पूछे कि आप ऐसा कैसे करें, तो then you can say you can listen to lecture of Shrimata ji said so. But otherwise, what she wanted was that you should become capable of now to Yes. tell people what you experienced. You see, a very important point is this. All those people, there are so many gurus in the market, you know this thing. Yes. Three or four gurus are up to certain level. They can't give relation, but they talk. Now they have started talking of vibrations also. I followed each and you name any guru of today, any guru. I have been following them right from 1985 till date. I can name them. In the beginning, they didn't talk. They started with one. Do you know what was the first sentence? A guru said, कि by doing a foot soaking in गर्म पानी में पैर डालने से कुछ नहीं होगा. This was the first reaction I had. And it was said Right. by a guru, very popular. You must be knowing it. I can name him. He was
Ramdev. Baba Ramdev said this thing in 85 that Right. गर्म पानी में पैर डालने से कुछ नहीं होगा. Yoga karo, Correct. yoga karo. So he Mhm. was telling about exercises and all this thing. This was the Yes. first one. Then there are, I don't want to name them. They Yes. started talking of vibrations. The point is this, उन्होंने किताब तो पढ़ी, उनको हमसे ज्यादा वो याद है, मंत्र याद है, सब कुछ याद है. Yeah. Because they have read it and they have mugged it. But the point Yes. is this, उनको ज्ञान नहीं. There is a हाँ. big difference between ज्ञान and knowledge. This is the very Yes, can important you point. please elaborate on that, Uncle? Because it's very hard to translate Gyan. Normally it is translated as knowledge, but please elaborate. There is no English word of Gyan anywhere in the world. Shri Mataji has said it. Hmm. At that time, I could not understand, but today I claim that there is no word of Gyan. I try to know it from everybody. I traveled to almost half of the world. Yes. सबसे पूछा कि ज्ञान का इंग्लिश वर्ड क्या है? They all say knowledge, which is not. Not adequate. Knowledge anybody can get Yes. by reading books, by doing this thing. But Gyan is that which you experience on your central nervous system. That is Absolutely. Gyan. So all these gurus, they have knowledge, but not Gyan. Yes. What Sri Yes. Mataji has said, Yeah. Sri Mataji said, you first experience the Gyan and then Absolutely. distribute it. Then Yes. people will accept you very easily. Yes. So we should emphasize on Gyan only, not on knowledge. Yes. भाई कि उसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है. Ji. Kabir Das was not a literate person. Tukaram was not a literate person. Kabir was not a literate person. Muhammad Sahib was not a literate person. All these persons, they were not literate, but they Yes. had the real knowledge, Gyan. They had the Yes. Gyan. So what Sri Mataji wanted from us, that we should attain that Gyan. That will save you from negative forces also. And when you Absolutely. will speak, it will have a different effect. And when they will speak, now when we listen to these persons, we know that ये कहाँ से बोलना है, हार्ट से बोलना है कि दिमाग से बोलना है. We know it Sahi hai. immediately. Yeah. है कि Uncle, नहीं? tell us about the times when Shrimata ji के साथ आप लोग बैठते थे. I mean, those times were so precious and unparalleled, where you would just sit with her and you'd be talking. This gyan would be just a normal conversation, isn't it? So tell us some of the techniques that helped to grow deeper and to experience that firsthand on the central nervous system. स्मिता, you will wonder, जब हम लोग श्री माता जी के पास बैठते थे तो जी. अपने होश हवास में ही रहते थे, उनकी माया में पड़े रहे, उन्हीं को देखा करते थे, उनकी बात सुनते तो खुश हो जाते थे, लौट के हाँ. आके सोचते थे व्हाट यू आर सेइंग. हमने किताब में पढ़ा तो नहीं नो, हाँ. आई थिंक इन 87-88 में, मतलब कोई स्पिरिचुअल बुक थी कि जो हाँ जी. सदगुरु होते हैं उनके आस पास जाने से ही आपको मालूम पड़ जाता है कि ये है कि नहीं है. जी. When I read this thing, up till this point I was so lucky. I was the only person who never needed Sri Mataji's permission. Because I was attending on to her, I would go and come out. So Wow. when I read this sentence, then I thought, श्री माता जी तो हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, तो इनके पास जाने से कुछ फर्क होना चाहिए. So next day when I went, and the moment I was near the door, immediately the vibration started flowing. Then I realized, no, she is the one. Wow. These are the practical experiences. What So was that many times, Ji. yes, Go on. Carry many a on. time we were under our maya. Yes. We behaved like normal human beings, and she would also behave like that. ये कैसी Yeah. है, ये चटनी कैसी बनी, ये खाइए बहुत अच्छी है. So we couldn't believe that she could be Adi Shakti.
So that brings us to the important question, and Shrimati ji ने अपनी एक स्पीच पे यहाँ इंग्लैंड में बोला है कि like I think it was a press conference or something where she said if Lord Jesus Christ walked into this hall, how would you know, you know? So how how do you know Shrimati ji is the Adi Shakti? I know we know it for vibrations for, but this video might be watched by people who don't know much about Sahaja Yoga, who don't know much about vibrations. So what are the things, please? I'm being very honest with you, Smita, Ji, that being a doctor and an egoistic person, I really wanted to know the truth. ji, I was not against anybody. I wanted to know the truth. क्योंकि up till that time, I mean, we didn't know, we never heard the name of Adi Shakti. हम लोग जी, राम कृष्ण और शिव जी का नाम yes. सुनते, आदि शक्ति को जानते नहीं थे। नहीं, सही कह रहे हैं अंकल। उस फिर हुआ क्या कि मैंने वो स्टोरी आपको बताई कि नहीं बताई? दैट आप फिर से बताइए for the benefit of our listeners. जी, चलिए, ऐसा हुआ कि 85 में गणपतिपुर ये शुरू हुआ, तो सब लोग 10-12 लोग फॉरेन से आते थे और हम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लाते थे। तो मदर हम लोगों से कहती थी आप भी इनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए। बहुत पैसा था ही नहीं किसी के पास, 10 सही है। रुपया 12 रुपए का कोई खिलौना लकड़ी का या मिट्टी का कुछ लेके उनको दे दीजिए, समथिंग शुड बी गिवन। हाँ, तो उनसे पूछ के ही हम लोग 85, 86, 87 तक करते रहे। हाँ, हर चीज उनसे, जब तक श्री माता जी रही, बगैर उनसे पूछे कोई भी काम नहीं करते। 88 की, आई थिंक इट वाज 88, मैं गया श्री माता जी के रूम में। श्री माता जी, ये फॉरेनर्स आ रहे हैं, इनके लिए कुछ गिफ्ट। तो एकदम से बोली बहुत कस के, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब आप लोग बड़े हो गए हो, अपने आप डिसाइड कीजिए। अब मैं खड़ा दरवाजे पर, श्री माता जी बता दीजिए कुछ। नहीं बताऊंगी मैं कुछ, आप लोग खुद भी तो कुछ काम कीजिए, मैं खड़ा हूँ। क्योंकि हम और तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, हाथ जोड़े खड़े हैं। फिर उन दिनों श्री माता जी एक किताब की बहुत बात करती थी, अमृत अनुभव की। जी, दिस इज अ नाइस बुक, एवरीबडी शुड रीड इट। तो मेरे मुंह से निकल गया, श्री माता जी मैं इन सबको अमृत अनुभव दे दूं। हाँ, जैसे ही मैंने उनसे कहा इन सबको अमृत अनुभव दे दूं, वो कुछ लिख रही थी, उन्होंने मेरी तरफ तिरछी निगाह करी और ऐसी जिसे सरकास्टिक क्या कहा, आई डोंट नो द वर्ड, ऐसी तिरछी निगाह से देख के मुस्कुरा दी, अच्छा दे दीजिए। अब वो मुस्कुराई क्यों, ये मेरे दिमाग में घुस गया कि इसमें क्या चीज मुस्कुराने वाली थी और इस तरीके से देखने वाली क्या चीज थी। हाँ, अब ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई, जी, जिसे बोलते हैं ये हमारे लिए गड़ा बन गया। सोचे जागते मेडिटेशन करते, वो दिमाग मदर की वो शक्ल जो तिरछी देख के मुस्कुराई थी, वो क्यों मुस्कुराई शुमा? इस बात को 2 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल हो गए। उसके बाद क्या होता है कि जब मुझको कोई तकलीफ होती थी तो मैं यही किताबें पढ़ लेता था। जब श्री माता जी लंदन में रहती थी तो मेरे को हर सवाल का जवाब मिल जाता था इन्हीं किताबों से। ज्ञानेश्वरी बहुत पॉपुलर थी, अमृत जी, अनुभव बहुत पॉपुलर थी, ऑल दीज बुक्स। तो उस दिन मैं बहुत परेशान था, किसी बात से, कोई फैमिली की प्रॉब्लम थी, आई डोंट रिमेम्बर। fair. तो मैंने एकदम से वो अमृत अनुभव किताब खोल के एकदम से खोली, और जहां से वो जो पेज खुलता तो मैं उसको पढ़ना शुरू कर देता। तो जब मैंने उसको खोला तो जो 12th वाला शायद स्टैंजा था, उसमें लिखा था, इन ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ द एंटायर लाइट, लिसन, इन ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ द एंटायर लाइट you end up getting the flame. Wow. Again, I am speaking for the benefit of others. In trying to get hold of the entire light, you end up getting the flame. Same way, worshipping the true nature of Devi, you end up getting Shiva. There तो we go. हमको ये लगा, तो हमने कहा हम लोग तो श्री माता जी की पूजा करते हैं, शिव जी की तो मेन तो हमारी श्री माता जी हैं। तो हम श्री सही है। माता जी की पूजा करते करते
हमारे हाथ में वाइब्रेशन आ जाता है जो कि शिवा है। तो हम लोग श्री माता जी के जरिए शिवा तक पहुंच जाते हैं। तो शिवा की शक्ति कौन हो सकता है? वो आदि शक्ति होती शक्ति। है। दैट इज वाई शी इज आदि शक्ति। अब ना इसको और सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ। जी। सूरज निकला हुआ है, वो अपनी रोशनी फेंक रहा है। आप उसको चारों, इसको पहले हम उसी वाले को दोबारा क्लियर कर देते हैं। एक मोमबत्ती जल रही मान लीजिए, और उसकी रोशनी हम चारों तरफ से पकड़ना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली हम फ्लेम को पकड़ते हैं हाथ में, राइट? सही है। इतना नहीं समझ में आया? फिर से बोल नहीं, रहा ठीक, हूँ। फिर से बोलिए। कैंडल एक जल रही है, उसकी रोशनी को हम चारों तरफ से पकड़ रहे हैं, अल्टीमेटली हम फ्लेम को पकड़ते हैं हाथ में। या सेम वे हम लोग श्री माता जी की पूजा करते 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 शिवा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमको हाथ में चैतन्य आने लगता है, जो कि वाइब्रेशन है, जो कि शिवा है, शिव सही तत्व है। है। हाँ, हाँ। ठीक है ना? तो जिस दिन मेरे को ये हुआ, तो मैं बहुत बहुत एकदम से बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि आंखें खुल गई, दिल खुल गया, दिमाग खुल गया। मैंने कहा ये तो बहुत सही बात है। हम लोग तो अभी वर्बली कहते हैं आदिशक्ति माता जी निर्मला देवी की जय, बट वेदर शी इज आदिशक्ति और नॉट, ये तो साफ सही है। साफ इसमें लिखा है। और उसके वाह। 2-3 दिन बाद की बात है कि मैं मेडिटेशन कर रहा था और यही प्रार्थना कर रहा श्री माता जी से। ऑटोमेटिकली मेरी कुंडलनी ऐसी चढ़ी, इतना इतना वो कर दिया, आई बिकेम माई सेल्फ फुल वाइब्रेशन। देयर वाज नो वाह। बॉडी, नथिंग लाइक दिस, नो ब्रेन, नथिंग। Then I realized, then I believed that Sri Mataji is Adi Shakti. This was the day when I completely believed and surrendered to her. So This the whole. roughly speaking, is this 1999, 2000 when you had this experience? No, this experience, I think yes, 93, 94. Because I had gone to Russia, when I came back from there, when I had some problem, then this thing happened. When I read it, and then I tried it, this thing happened. And once more, in Yeah. 88, in Yeah. 88 और 89 गणपति पुले हम लोग समुद्र में नहा रहे थे, 8-10 लोग थे। नहा के गीले कपड़े पहने ही निकले। श्री माता जी का कमरा था, नंबर 1 उनका सूट था। नंबर 1 के सामने से जैसे ही निकले, सुष्मिता, यू विल नॉट बिलीव, ऐसा कुछ चला कि जैसे एक एंगल से चला, लाइट यूं चली, एक हवा चली यहाँ से लेके, और पूरा बदन साफ कर दिया। वाह। पूरा बदन क्लियर हो गया अपने आप, डूइंग नथिंग, नॉट इवन meditating, or just I was passing through there. Amazing. This thing, two, three persons experience this thing. So this thing is experienced by not only me, by so many persons. Yes. Then after that, I have no doubts about it. Never. क्योंकि हम जानते हैं बहुत लोगों को बहुत दिनों तक डाउट्स आते रहते, तो There वो have डाउट been. जब खत्म। जी। Now the good you asked this question. In the beginning, I remember, because I used to stay with Shri Mataji in her room. So she would tell everybody, including Gregoire, Guido, and all these. They were all at that time new Sahajogis, 3, 4, 5-year-old Sahajogis, 3, 4-year-old Sahajogis. जब तक तुम मुझको, till you will recognize me, you will not get Sahajoga. तो हम, I used to wonder, recognize क्या करना, सामने तो बैठे हम लोग recognize कर रहे हैं कि that's you. Yes. But that रिकग्निशन ये होता है कि आपके अंदर कोई भी डाउट ना रह जाए, 1%, 0.0001%, वो रिकग्निशन। जब तक आपके अंदर ईगो है, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बिकॉज शी इज महामाया। Absolutely. दिस थिंग व्हेन हैपेंड आफ्टर दैट। अच्छा, एक चीज और अब ऐड कर दूं आपको, क्या आपने सवाल पूछा है कि शुरू में क्या अभी तक भी लोगों के दिमाग में ये बहुत सारी बातें हैं कि मैं लीडर बन जाऊं, मैं कोऑर्डिनेटर बन जाऊं, मैं वर्ल्ड लीडर बन जाऊं, एंड ऑल दीज थिंग्स। एक स्टेट ऐसी आएगी आपकी लाइफ में
एस्टेब्लिश तो बहुत से लोग हो गए हैं, दे आर इन, आई विल से इन हंड्रेड्स, लेकिन वो करते करते एक स्टेट ऐसी आएगी जब आप खुद से नहीं चाहेंगे लीडर बनना। दिस आई एम टेलिंग यू। आज का अभी भी लोग बात चाहते हैं लीडर हो जाए। वो कहानी हम जब छोटे थे, इस 7th क्लास में पढ़ते थे, तो शिवाजी महाराज की कहानी याद आती है कि शिवाजी महाराज जो थे, उनके गुरु थे समर्थ रामदास। एक दिन शिवाजी महाराज की कुंडली बहुत कसके चढ़ गई ऊपर, बिल्कुल ही बिकेम जस्ट वाइब्रेशंस। तो उन्होंने कहा अरे इससे बढ़िया तो कोई स्थिति नहीं है। तो भागे भागे गए समर्थ रामदास के पास कि महाराज, उनके पैर छुए, आप हमारा राजकाज ले लीजिए और मुझे यहाँ पर बैठने दीजिए, ध्यान करने दीजिए। तो समर्थ रामदास ने कहा नहीं, तुम्हारा कार्य वो है, तुम वो करो, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो बोले महाराज आप हमें कोई अपनी निशानी दे दीजिए जिसको कि हम यूज कर सकें। तो उनका एक, वो जो पुराने जमाने जो साधु लोग लंगोट टाइप की पहनते थे, लंगोट टाइप की, वो टंगा हुआ था। बोले तुम इसको ले जाओ, और उसको ले जाके शिवाजी महाराज ने अपना झंडा बनाया, जो आज तक वैसे ही चल रहा है। And then langot for our viewers who are watching in English is basically the Indian equivalent of the underwear. You can say Indian undergarment. The Indian undergarment. Yes. Garment for which saints used to wear. Yes. So ये आपको कभी पावर की इच्छा ही नहीं होगी। अगर इच्छा होती तो अभी आपके अंदर कमी है। इसके जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो कि लास्ट, हम उसको लास्ट समझते हैं। Thou shall not, वो तो सब आ गया, steal, do this thing, love thy neighbor, don't kill, and all these things. दो चीजें कही हैं। You should not have adulterous eyes. Absolutely, yeah. And the last one is you should not have adulterous mind. इस पर काम करने की जरूरत कि आपका माइंड जो है वो अडल्ट्रस चीजों पर न जाए। इट टेक्स टाइम, लेकिन इसमें आपको राइट साइड भी यूज करनी पड़ेगी। कि आप जैसे मान लीजिए आप देर से सो के उठते हैं या कहीं दिमाग जा रहा है, तो आपको उसको निगेट करना पड़ेगा। श्री माता जी ने कई बार कहा है डायरेक्टली, नियत 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 मीन्स नो नो नो। जब भी ऐसे बुरे ख्याल आए उनको आप निगेट कीजिए, निगेट कीजिए। बिल्कुल। एंड ऑल्सो along with this thing, pray to Shri Mataji. Shri Mataji, please help me in getting rid of these things. Then it works. This is what I have experienced. ये जितने झगड़े अगड़े चल रहे हैं आजकल, ये तो सब देख के हंसी आती। जब श्री माता जी कहती थी ना कि ये सब मैंने किसी को लीडर बना दिया, किसी को वर्ड लीडर बना दिया, अरे ये तो सब मेरा खेल है, वो तो ओपनली कहती थी। वाकई अब हमको लगता है ये खेल है। एक किस्सा आपको और सुना देता हूँ लीडरशिप के बारे में। प्लीज। हम लोग किसी गेस्ट हाउस में टिके हुए थे। तो मैं तो क्योंकि श्री माता जी साथ था, तो लोग तब सहयोग फैल, मतलब अच्छा हो गया था। दिल्ली में 500-700 लोग हो गए, काफी ठीक हो गया। तो बैठे थे कमरे में, तो एक लड़का गुजरा, फॉरेन का लड़का था, हम उसका नाम नहीं जानते। तो उन्होंने बोला इसको बुलाओ। तो आई कॉल्ड हिम, ही केम टू हियर। तो उन्होंने पर्टिकुलर आदमी का नाम लिया। ही इज अ वेरी नाइस सहयोगी। He is even today, he is a great Sahajogi. He was the leader and very nice person. I will not name him, but people know this. Okay. So mother said कि वो कैसा है, वो कहाँ है? बोली यहीं श्री माता जी। अच्छा वो कहाँ है? वो भी आया? बोले हाँ आया। अच्छा आप जाइए और दोनों को कह दीजिए that you have been made world leaders. उन दिनों पहले था अपना दिल्ली का लीडर, फिर इंडिया का लीडर, फिर वर्ल्ड लीडर। तो वर्ल्ड लीडर सो इन दोनों कह दीजिए, मदर हैज सेड दैट यू हैव बिकम वर्ल्ड लीडर्स। आपको बोला?
नहीं, हमको नहीं बोला, उस लड़कियों को बोला जिसको बुलाया था कि अच्छा अच्छा उन दोनों फॉरेनर्स को बोल दीजिए यू हैव अच्छा। बिकम वर्ल्ड लीडर्स। ठीक है, वो चला गया। हम्म। नेक्स्ट डे वो पास हो रहा है, उसको वर्ल्ड लीडर बना दिया गया। हाँ। Whatsoever he said. So next day again he was passing to बोले इसको बुलाओ, तो बुलाया उसको, बोले तुमने उसको उनको बता दिया कि तुम वर्ल्ड लीडर हो गए? बोले जी श्री माता जी। तो उन्होंने क्या हम्म। कहा? उन्होंने कहा श्री माता जी थैंक यू वेरी मच, गिव मी द स्ट्रेंथ सो दैट आई कुड परफॉर्म योर ड्यूटीज। उन्होंने ऐसा कहा? बोले हाँ। बोले जाओ उनसे कह दो यू आर नो मोर वर्ल्ड लीडर। नेक्स्ट डे, टुडे शी सेड यू आर वर्ल्ड लीडर, नेक्स्ट डे शी सेड दिस स्टोरी एवरीबॉडी नोज द ओल्ड सेड यू। अच्छा। अब मेरी हालत ये खराब, मैंने कहा, उसने कहा क्या? उसने तो ये कहा थैंक यू श्री माता जी, गिव मी द पावर सो दैट आई कुड डू योर वर्क। इसमें कुछ चीज आपको गलत लगती है? Not on the टेल मी। face of it, no. ऑन द फेस ऑफ इट नहीं लगती। मैं But इतना परेशान, मैंने कहा उसने कहा क्या गलत जो श्री माता जी ने इसको निकाल दिया? अब Shrimati ji, पूरे you are the दिन doer, enjoyer. That's the thing. इतना परेशान रहा मैं, 2-3 दिन कुछ नहीं कहा। हाँ। फिर बाद में मैंने इनडायरेक्टली, ये बात ऐसी थी कि सबको मालूम पड़ गई। हम्म। तो 1-2 लोग थे जो श्री माता जी के साथ रहते थे, 1-2 लोग जो पुराने लीडर्स थे, वो आए, उन्होंने बात करी। तो मदर ने कहा व्हाई डिड ही से गिव मी द स्ट्रेंथ सो दैट आई कुड डू दिस थिंग? डज ही डू एनीथिंग? आई डू एवरीथिंग। Yeah. दैट इज व्हाई ही हैज बीन मूव्ड। अंडरस्टैंड? Yes, got you. दिस वाज द पॉइंट। Mm. You do nothing when you come to this stage, then you deserve to become a world leader. Wow. These were the things. So roughly this is about 2000 something, isn't it? Because उसके पहले world leader नहीं होते थे. Is that right, uncle? नहीं होते, वर्ल्ड लीडर होते थे इससे पहले भी। अच्छा, तो ये कब की बात है रफली? बिकॉज ये जैसे अभी अभी तो कई सहयोगियों को मालूम होगी, मगर 100-200 साल बाद तो अरे ऐसे भाई, कम ही लोगों को पता होगी। सबसे पहला वर्ल्ड लीडर राजेश शाह बना, फिर ग्रेगवार बना, जूडो हम्म। बना, ये लोग बने। Of तभी उन्हीं course, दिनों की बात है yes, yes. So this ये। is 90s, late mid to late 90s. 90 Yeah. Mm. But I was a leader, I remember. Yes, It was yes, mid 90s. I yes, hope so. I know yes. you all know him, and he's become a popular reason being when this thing was told to everybody, they all laughed, and I also thought what wrong he has done. But the truth is this, that she wanted to tell Sahaj Yogis that Mm. you do not do anything, I do everything. Absolutely. आप आप देखती हैं इतने इतने बड़े प्रोग्राम होते हैं, आराम से सब निपट जाते हैं। सही एक है। किस्सा आपको और छोटा सा सुना देता हूँ। Yes, please. बिल्कुल नया नया मैं था हाँ, सबसे पहले। ये शायद हमारा ख्याल है कि 81 का ही किस्सा है। मेरे को सहयोग में आए हुए हाँ, 15-20 दिन हुए होंगे, महीना भर हुआ होगा फिर श्री माता जी। तो श्री आस्क्ड मी हाँ, वन डे, हम लोग उन दिनों में एक फोटो जो थी वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, तो कलर फोटो तो थी नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जी, इस साइज की, 1.5 इंच या 2 इंच वाली साइज की, वो हर एक को देते थे। हाँ, और एक रुपए में बन के आती थी, 1 रुपए में दे देते थे। तो मदर आस्क्ड मी कि आप लोग ये फोटो कैसे देते हैं? हमने कहा श्रीमाता जी 1 रुपया लेते हैं, 1 रुपया में दे देते हैं। He said, no, आप लोग फोटो का 1 रुपया नहीं लेंगे, आप लोग अपनी जेब से दीजिए 1 रुपया, नहीं तो वाह, लोग कहेंगे ये भी एक बिजनेस है। तो ओह, फ्रॉम दैट डे इट वाज अनाउंस कि फोटोज फ्री दी जाएंगी। वाह, वहीं का किस्सा है कि एक साहब, इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे, एक नेताजी थे बताएं। हरियाणा, जी, तो वो श्री माता जी से मिलना चाहते। अच्छा, श्री माता जी जब जहाँ टिकी थी, उनका रूम तो ग्राउंड फ्लोर में था,
एक रूम ऊपर, क्योंकि उन दोनों वॉरेन उनके साथ थे। ये अच्छा 81 की 82 की बात है। हम्म वॉरेन ऊपर थे मदर के साथ रूम में। तो वॉरेन विल पिक अप द फोन, वो ही यूज्ड टू फोन 10 times a day, and mother said I don't want to meet him. तो वॉरेन अपना फोन कर रहे, नो नो शी इज गॉन, somebody came and she is gone with them, and then she is taking bath in the evening. They said, but he was avoiding them. हम्म 3-4 दिन हो गए। चौथे दिन वो मेरे पास इसके बीच में मेरे पास आया। मैंने कहा श्री माता जी तो यहाँ आए नहीं। तो ही ट्राइड कि भाई आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हो, हमारे लायक कोई सेवा हो बताइए। ही वांटेड टू इन ए वे ब्राइब समथिंग, कि हम हम्म आपकी ये मदद कर सकते हैं, थोड़ा पैसा दे सकते हैं, मंदिर अंदर बनवाइए, हम कर सकते हैं। तो आई टोल्ड दिस थिंग टू श्री माता जी, और उन्होंने मुझको डांट लगाई पहली बार अच्छा कि पैसे की बात किसी से मत कीजिएगा, पैसा तो हम्म आपके पास चल के खुद आएगा, आप ईमानदारी से सहयोग का काम कीजिए। मैं इतने साल लीडर रहा, मेरे को एक पैसे की कमी नहीं आई। हम्म, और श्री माता जी हमेशा तारीफ करते थे, दिल्ली वाले कहाँ थे, कितने गए गुजरे थे, हाँ सबसे अच्छा हाँ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सही तो हम्म। इफ यू फुल्ली डिपेंड ऑन हर, इट वर्क्स। It's the thing of being fully dependent on Shri Mataji and also doing everything to please Shri Mataji. It's as simple, but it's in the modern world, it's easier said than done, isn't it? Because Maya itni bhayankar hai. What will please Mata ji? I'm asking you a question. What will please her? The only thing that will please Devotion, her, faith, but faith in Shri no, Mataji, total, that you she's have to, doing everything. no, you have to make new Sahajogis. Yes. That is the thing that will please her. The Yes, moment Very you make a new Sahaja Yoga. Sahajogi, you Ji. improve yourself. Absolutely. Yeah, this happens every time whenever like here we give realization on we Exactly. participate in realization programs and you can feel the vibrations, the kundalinis in a different Exactly. level altogether. Yeah. Yes. This is what she wants. और ये जो कहना कि किस्से तो बहुत सारे हैं, हंसी मजाक के किस्से बताइए बहुत आप सारे। बताइए please. That's the whole point of capturing those किस्सा क्योंकि वो एकदम अभूतपूर्व unparalleled चलिए डिश है। एक एक किस्सा आपको बताते हैं। जी गुरु पूजा थी कबेला में। हम्म तो गुरु पूजा में मोस्टली गुरु पूजा का सामान इंडिया से जाता था, तो हम ही जाते थे मोस्टली हाँ गुरु पूजा इंडिया में। इज वन ऑफ द होस्टिंग कंट्रीज गुरु पूजा में। हाँ, तो गुरु पूजा में गए, गुरु पूजा खत्म हो गई एक दिन, और उसके थर्ड डे हम और योगी महाजन श्री माता जी के पास गए कि श्री हम्म माता जी इजाजत दीजिए, हम लोग अब वापस जाना चाहते हैं। देखने लगी, बोले आप लोग 2-3 दिन और रुक नहीं सकते क्या? कैसा श्री माता जी? बोले मैं भी चल रही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ चलिए, मेरे को भी दिल्ली जाना है, ओहो मेरे साथ चलिए। ठीक है श्री माता जी। बोले बस एक छोटा सा काम है, हमको एक साइन करने हैं रोम एयरपोर्ट पे, वहां पे ऐसी फ्लाइट लेंगे यहाँ से रोम, रोम से दिल्ली। ठीक श्री माता जी। तो हम लोगों ने यहाँ से फ्लाइट ली। रोम में ये था कि कनेक्टिंग, वहां पर सिर्फ श्री माता जी को साइन करने के बस। तो बोले हम्म एयरपोर्ट पे एक जॉर्जियो करके एक लड़का था, वो है हम्म अभी, वो हाँ हाँ एयरपोर्ट पे रोम में काम करता है। तो हमेशा मदर को अंदर तक लेने आता था, प्लेन तक छोड़ता था। हाँ वो वो वहां पर आ गया, लेकिन जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी रोम से, जो कि 1.5 घंटे बाद चलनी थी,
वो 7 घंटे लेट हो गए। अरे तो उसमें ये रूल ये है कि जो लोग फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं, हाँ, अगर 6 घंटे से ज्यादा का ब्रेक कहीं पर होगा, वो एयरपोर्ट पे उनको रूम मिल जाता है, वेरी नाइस अच्छा। रूम। तो हम्म। रोम एयरपोर्ट पे सर सीपी और श्री माता जी को 2 रूम मिल गए। हाँ हाँ। हम्म। तो मदर बोली, एक में आप और योगी रुक जाइए, मैं एक रूम में मैं रुक जाती हूँ, मैं और सीपी रुक जाते हैं। ठीक है श्रीमान। आप ये देखिए, हम लोग मदर अंदर चली गई। यू हाँ। विल नॉट बिलीव कि हम योगी बात ही कर रहे, तभी रूम के अंदर भी नहीं गए। श्री माता जी कमरे से निकल आए, एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्रेश, जैसे ताजा नहा धो के तैयार होके निकली वाह, विद इन 5 मिनट्स। हम लोग तो बहुत अमेजिंग। चटके थे कि इतनी जल्दी कैसे क्या हो गया। निकल के आई, हम्म। बोले मैं तो शॉपिंग पे जा रही हूँ, आप लोग चलेंगे? हाँ, हमें तो शॉपिंग से श्री माता जी को बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा नहीं श्री माता जी, बोले मैं तो शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो वो सर सीपी शॉपिंग करने चले, बोले शाम को मैं यहीं लौट के आऊंगी, फिर यहीं चलूंगी। ठीक। अब शाम को 7:20 की फ्लाइट थी, इंटरनेशनल फ्लाइट 7:20 की। अब 6 हम्म। बज गया, मदर नहीं आई, 6:30 बज गया, 7 बज गया, और 7:20 की फ्लाइट। तो भाई मैंने योगी से कहा, मैंने कहा योगी चलो पास में ही, मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही था होटल हमारा। तो वहां से 400-500 गज या 1000 गज की दूरी पर था वो। तो हम योगी महाराज हम लोग चले गए कि चलो वहीं चलते हैं, शायद सीधे श्री माता जी अब वहीं आ जाए। जब वहां पहुंचे हम, तो देखा कि 200-300 लोग फूल लिए खड़े हुए। इट मीन्स अभी श्री माता जी नहीं आई। अब मैं और घबराया। अब बज गया 7:20 की फ्लाइट, 7:15 बज गया, 7:30 बज गया, और श्री माता वाह। जी नहीं आई। और वहां पर अनाउंसमेंट चल रहा है, मिस्टर श्रीवास्तव, मिसेस श्रीवास्तव, योगी महाजन, डॉक्टर निगम, प्लीज बोर्ड द प्लेन, इट्स बिकॉज ऑफ यू इट्स गेटिंग डिले। अनाउंसमेंट, और उन्होंने एक ट्रॉली भी भेज दी अपनी बैटरी वाली। जैसे ही आए वैसे उनको बैठा के प्लेन बैठा दिया, बिकॉज दो 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 जने जो थे वो फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे, और हमारा सामान ऑलरेडी जा चुका था। जॉर्जियो को ये लग रहा था कि आज मेरी नौकरी गई, क्योंकि उसने बोर्डिंग पास ले लिया था उसने। हाँ। जब आप बोर्डिंग पास ले लें तो प्लेन कैन नॉट फ्लाई। तो ओ। यही सब चल रहा था। करीबन 7:45 या 8 बजे, मतलब 7:45 और 8 के बीच में श्री माता जी आई, और जैसे ही हम दोनों को देखा डांटने लगे एकदम। आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं आऊंगी, तो आप लोग वहां रुके क्यों नहीं? सॉरी श्री माता जी, जब 7:30 बज गया, कुछ भी होता, जब मैंने कहा था तो आपको वहां रुकना चाहिए था। तो मैं तो थोड़ा सही है। पीछे हट गया। योगी को भी सुनाई श्री माता जी को। खैर, और इतने में सब लोग फूल देने लगे। है जूली है, हाउ मच हाउ यू, और सब आराम से। और वहाँ अनाउंसमेंट चल रहे हैं, मिस्टर श्रीवास्तव, मिसेस श्रीवास्तव, योगी महाजन, बोर्ड द प्लेन। और श्री माता जी मुस्कुरा मुस्कुरा के किसी को प्यार कर रही, बच्चे को फूल ले लेके इकट्ठा। और इसके बाद श्री माता जी वहां से जो शॉपिंग, वो गुस्सा इसलिए हुई थी, वो शॉपिंग करके जो सामान लाई थी, कैन यू बिलीव, जो एक पिलो होता ना, हम्म। इतने बड़े बड़े बैग, 16 बैग थे। वाह। उसको लेके श्री माता जी आई। अल्टीमेटली सब चक्कर सारा खत्म हो गया, तो हम लोग उसी ट्रॉली में जो एयरपोर्ट पे होती ना, बैटरी हम्म। वाली, उस यस। पे 2 जने, श्री माता जी सर सीट पे पीछे बैठ गए, हम लोग आगे बैठ गए 2 जने। और सब लोग अपने हाथ यूं फैला के बैग लिए हुए, 2-2 बैग आराम में। और पूरा एयरपोर्ट देख के हम लोग हंस रहा कि ये कैसे कैसे ट्रेवलर है, इतना सामान लेके हैंड बैगेज में जाएंगे, उन्हें क्या मालूम। एनीवे, हाँ। हम लोग जैसे जैसे पहुंचे उस प्लेन में, तो सब लोगों ने हूट करना शुरू कर दिया।
because of Hoot you the karna. plane is left. हाँ. This is not right. You may be first class driver and all this. हमको थोड़ा गुस्सा भी आया तो मदर ने कहानी चुपचाप बैठ जाओ. तो हम लोग इकोनॉमी क्लास में बैठे थे, मदर और सीपी फर्स्ट क्लास में बैठे. वो वहां बैठ गए, हम लोग बैठ गए. अब प्लेन को चलना था 7:20 पे. हम लोग 7:15 बजे करीबन 7:15 8:30 बजे प्लेन में बैठे. अब प्लेन नहीं चल रहा है. 7:15 8:30 9 9:30 10. तकनीकी खराबी. तब वाह. मदर से कहा कि, तो श्री माता ने कहा आप जाके उनसे पूछे क्या हो गया. तब उसने पायलट ने अनाउंस किया कि बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस वी आर नॉट एबल टू. ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन not once, so many times. Yeah. It reminds me once on a talk we were watching where Srimataji was talking about this. She was traveling with some yogis, Sahaj yogis from Austria and Italy to Yes, Poland. his Wolfgang name Haeckel. his name is, he just died only few Yes, months back. Wolfgang Haeckel. And he was Wolfgang. accompanying Srimataji. Huh? Same story where That story everybody knows. He wept Yeah. tears. Wolfgang Yes. also stayed with us in Delhi. All Yeah. these persons, they were all leaders, first leaders. Yes. And I was that Yes, I so was it's lucky. amazing how Shrimataji works it out that when she wants, only then it's like not a blade of grass moves without her permission. Forget about a plane. इतना सब सुनने के देखने के बावजूद भी वो हाँ. माया में डाल देती, वो माया में डाल ये बात तो है. ये बात तो है. So how do you keep out of Maya then? Is there any way that you can keep out of Maya without getting caught in that web? देती. The best way is this thing, relax, ध्यान करो, रिलैक्स करो, अटेंशन अपने अंदर ले जाओ. दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कीप योर अटेंशन इनसाइड. जैसे अटेंशन बाहर जाएगी यू विल गेट कैचेस. इस नोबडी कैन सर्वाइव विदाउट कैचेस. आप जिसके ऊपर अटेंशन रख. श्री माता जी कई बार जाती थी तो जैसे कोई बहुत भिखारी हो, गरीब हो, चोट लगी हो, तो वो कहती है भैया उस तरफ मत ले चलो, मैं उसका दुख पकड़ लेती. तो उस चीज से बचना चाहिए. टेंशन अगर आपकी अंदर होगी तो आप कैचेस नहीं करेंगे. टेंशन आउटसाइड होगी तो जरूर कैचेस करेंगे. चाहे वो, हमने तो ये फील किया है कि बड़े बड़े लोग भी पकड़ जाते हैं. लेकिन बेस्ट वे इज टू कीप योर अटेंशन इनसाइड. अब वो ये क्या नाम उनका, एक गुरु, बहुत पूरा गरीब गुरु था, क्या नाम उसका, नाम याद आ जाएगा. उससे किसी ने पूछा, गगनगिरी महाराज. नहीं गगन गिरी, और अरे नहीं, गोरा कुमार के टाइम साथ में था. गोरा कुमार और ये नामदेव. सब लोग. नहीं, संत तुकाराम. तुकाराम. तुकाराम से किसी ने पूछा कि महाराज हम याद तो भगवान को बहुत करते हैं लेकिन बीच बीच में भूल जाते हैं. तो तुकाराम ने एक जवाब दिया कि तुम हमको एक चीज ये बताओ, अगर तुमको कहीं सड़क पर पड़ा हुआ एक हीरा मिल जाए जिसकी कीमत 2 3 4 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, तो तुम उसको क्या करते हो? बोले उसको सब उठा लेते हैं और सीने से लगा के रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं. बोले रात को भी लगा करके? बोले बिल्कुल. बोले उसको छोड़ते तो नहीं कभी? बोले नहीं छोड़ते. बोले तुम हीरो को तो छोड़ते नहीं हो, भगवान को छोड़ देते हो. बस ये कमी है. जैसे तुम उसको पकड़ रखते हो ऐसे ही भगवान को पकड़े रखो. जैसे ही आप भगवान का हाथ छोड़ते हो तो भगवान कहता जाओ अपनी मर्जी से कर लो जो करना हो. तो पॉइंट ये है कि डिटैचमेंट एंड फॉरगिवनेस, these are the two mantras for being a good Sikh. This is what I have learned from Srimata. I may be wrong, I don't claim,
ये तो उन्होंने हर एक से कहा, सबको मेरे सामने डांटा है, जाने कितनी बार ग्रेगवार से। he was considered a very great scientist, you know, a very dear friend of mine. उसको उन्होंने एक दो बार मेरे सामने कहा, ग्रेगवार, he had already written that book, Edmund. ग्रेगवार, you have to recognize me. और ग्रेगवार सर झुका के उन आंख में आंसू लेके निकल जाता, because he was very, I mean, Shri Mataji loved him too much, no doubt. Of course. All these persons, in the beginning, mother always told everybody, you will have to recognize me, then you will be happy. So you have to recognize her by meditating, and once for 2 minutes, if you drown yourself into her, you will know the truth. उसके बाद फिर आपको डाउट नहीं होगा. That is doubtless awareness. True. So, So what else? Yes. So I only sorry. हाँ, आप बताइए. No, your lady. No, please. No, please say. I'm sorry I interrupted. What I want to just inform my dear friends, younger brothers, sisters, कि आजकल जो कुछ चल रहा है, गड़बड़ियां ये सब टेम्परेरी हैं. इसमें आप पढ़िए ही नहीं, ध्यान करते रहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए. जो और जितनी चीजें हैं ये धीरे धीरे करके सब निकल जाएंगी. ओनली द ट्रूथ विल सर्वाइव. अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी थोड़ी कमी है. दिस इज व्हाट आई विल से. Okay. Great. Thanks for that reminder, Dr. Nigam. Now let's get back to Auntie, and it's very nice that both of you joined. Delhi में सर्दी हो गई है इस समय as we go closer to Holi. But you know, सर्दी जुकाम के बावजूद आप लोग हमारे साथ हैं, इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद. तो श्रीमाता जी के साथ कुछ अपने बिताए हुए पल हमें बताइए, जैसे क्योंकि उनके साथ मैंने ये उनकी अद्भुत शक्ति, व्यक्तित्व श्रीमाता जी का, जिसमें वो हम लोग को अपना आदि शक्ति रूप भी दिखाते थे, लेकिन एक एकदम जैसे एक दोस्त, एक माँ, एक सहेली, वो रूप भी साथ में रहता था, जिससे हम लोग डरे ना. जैसे अगर श्री दुर्गा के रूप में अगर हम उन्हें देखते तो शायद उनके इतने पास नहीं जा पाते. वैसे कुछ लम्हे हम लोग के साथ बताइए, जो विशेष रूप से लखनऊ के बारे में या कानपुर के बारे में, क्योंकि आपका एक कनेक्शन था उस ज्योग्राफिकल एरिया से. ऐसा कुछ है आपके जहन में? सुष्मिता, मैं लखनऊ के सेंटर में आज तक नहीं गई. Can you believe it? I can. And the reason was because both of us can't travel together. Of course. One had to stay back, and the family was very young, and of course, things were very unstable at that time. So he was mostly traveling. And my only point where I used to really pick up a fight with him was, भाई आप तो घुमा करते हो श्री माता जी के साथ, पूजा में भी खूब जाते हो. और मेरा एक वर्ड था, मैंने कहा मुझे 99 के चक्कर में फंसा दिया. मैं यहाँ बची नोट गिन रही हूँ और आप मुझे से पूजा अटेंड कर रहे हो. तो एक दिन इन्होंने श्री माता जी से कहा, श्री माता जी, Renu was very angry with me and we had a fight over this. He said, why? She said कि आप तो पूजा में जाते हो और हम यहाँ पे फंसे हुए हैं घर में. Because I had to take care of the business and the children and घर गृहस्थी की जो भी आपने जो भी था. तो कहने हंसी बहुत जोर से, कहने कि आप अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो, मेरा आशीर्वाद उनके ऊपर, उनको करने दो, उनको नहीं, आप अपना काम करो. So that was a lesson for me कि this is what I deserve and this is what I get, and since my attention is on me, हम जहाँ पे भी हैं ठीक ही हैं. तो उसके साथ
you'll be surprised that I haven't seen Pratishthan till now. I just had an opportunity to be with her when she was in Delhi, and twice I traveled, two, three Yes. times I traveled with her. Once I went to Patna when she went to meet Sanjay. Once I went to Lucknow when she was attending a wedding of Mr. Abdesh Narayan's daughter. And once I went to Jaipur with her when the first time. And my visit where I was very close to her for a longer period was in Russia. Because there I traveled and then I was sort of had the privilege or the blessing to be close to her, to cook for her, and to take care of her, whatever was required. I mean, who am I to take care of her? But otherwise, I haven't traveled much. And from Russia, I went to Montecassino for a puja. From there, I went to Rome, and as a tourist, we went to Venice and then to, Naples and then Capri Yes. Islands and here and there. But that was all like a, looking, Yes. just traveling. But with Shimataji, I was in Russia, and then that was it. So So, the only thing I can tell you was that she never showed her, Adishakti roop to us. Not even close to that. What to say of the roop, And she was more like a friend, a mother, a grandmother, asking yes. about children, talking about husbands pulling their legs. अक्सर मुझसे कहती है कास्ट लोग जो होते हैं ना बिकॉज श्रीवास्तव साहब का ऑल्सो कास्ट कहते हैं बड़े टेढ़े आदमी होते हैं लोगों को एज अ हस्बैंड दे आर नॉट गुड एट ऑल मतलब I'm sorry ऑल that आपने ये बोला और हमने नहीं क्योंकि एक ये तो मतलब है इतनी हाँ कहानी किससे हस्बैंड्स के बारे में और जिठानी के बारे में एंड मदर इन लॉज एंड दिस एंड दैट एक दफा उन्होंने मुझसे पूछा भाई अच्छा दिस इज अ वेरी स्वीट एक्सपीरियंस we were traveling from Moscow to Leningrad, and we were in a coupe. कि माता जी की लोअर बर्थ थी और वो बहुत छोटा सा कंपार्टमेंट था बहुत छोटा मतलब उनकी बर्थ के बाद इतनी स्पेस नहीं थी कि वो अपने पूरे पैर चढ़ सकते और मेरी अच्छा बर्थ थी उनके ऊपर माय बर्थ वाज ऑन टॉप अब मैं खाने के बाद थोड़ी देर उनका पैर वैर दबाते थे बिफोर शी वुड गो ऑफ टू स्लीप तो देयर वाज नो स्पेस तो उन्होंने क्या किया अपने पैर मेरी गोद में रख दिए और मैं वहीं पे बैठ के उनका थोड़ा सा पैर सजा लीजिए उसके बाद फिर वो लेट गई अब जब वो लेट गई एंड शी वाज नियरली गोइंग ऑफ टू स्लीप देन दो दफा उन्होंने उठा के हमें देखा अब हम बैठे हो नीचे मेरी हिम्मत ना पड़े कि मैं ऊपर वाली बर्थ पे श्री माता जी के ऊपर कैसे सो जाके चढ़ू भी कैसे थोड़ी देर देखती है उसके बाद हंस के बोली कहने जाइए और कोई जगह नहीं है वहीं सो जाइए जाके तो दैट वाज इट एंड उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद वो उठी उठ के शी वेंट टू द वॉशरूम और मुझे नींद ना आए मैं ऊपर झाँक जाके देखो अभी तक आई नहीं है एंड यू नो व्हाट शी डिड शी क्लोज्ड द डोर व्हेन शी लेफ्ट द coupe she closed the स्लाइडर था उसको बंद कर दिया और जब मुझे काफी देर हो गई मुझे समझ नहीं आया तो मैं नीचे उतर के जैसे ही दरवाजा खोला कैसे अच्छा हुआ आप आ गई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं किस कमरे में घुसूं so ओह she got lost in the corridor actually but anyways that was very sweet of her फिर वो ऐसी बात करती रही because we are four sisters and two brothers and everybody is a son even my mother is a son became such later on वाह so she asked me कैसे हो मिसेस रायजादा आपकी सबसे बड़ी बहन है मैं कहा करने की कि वो डॉक्टर राय की वाइफ जो है हमने कहा वो नंबर 2 की है ऐसी बात करते करते फिर हमने कहा कि माता जी मैं यंगेस्ट हूँ and I'm most unwanted child in the family because I was born after a gap of 6 years and actually my parents didn't want me but I was there बहुत जोर यस से हंसी कहती आप अनवांटेड कैसे हो सकती थी आपको तो आना ही था so this is here and there and मॉस्को में my only experience which was अभी भी मेरे goosebumps होते हैं
शी वाज चेंजिंग हर क्लोथ, और उन्होंने अपने ये शोल्डर के पीछे ये और नीचे जगह होती, यहाँ पे क्रीम हाँ दिखा जी। दी, गिव इट टू मी, कहते यहाँ जैसे क्रीम लगा तो बहुत ड्राई हो रहा है। एंड आई टुक दैट क्रीम, और जैसे ही मैंने उसका शरीर छुआ, आप समझिए जैसे करंट लग जाता है ना, हम्म। मतलब आई कुड नॉट इवन मसाज हर बिकॉज वाओ। आई वाज, आई डोंट नो, ट्रांस में थे कि क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। अदरवाइज आई मसाज वेरी वेल, व्हेनेवर आई गेट अ चांस आई डू इट फॉर यू आल्सो। तो जैसे उन्होंने कहा पीठ पे लगा था, उसमें हाथ में रखूं, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वेदर आई डिड इट और आई डिडंट, वो मसाज किया कि नहीं किया, पर वो एक्सपीरियंस लाइफ का मेरा बहुत ही अनहोनी सी चीज थी कि वो जो एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने asked me to put cream on her back, you know. हम्म। That was amazing. तो Yes, अमेजिंग। छोटे-छोटे and एक्सपीरियंस है, पर कभी भी उन्होंने ऐसा शो ही नहीं किया कि St. वो, Petersburg, हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग में तो जैसे ही with वो, Hester, हाँ, जो हेस्टर, गई थी वहाँ पे। हाँ, हेस्टर के साथ, अच्छा, मॉस्को में हमसे बोले कि आपने वो देखा सेंट पीटर्सबर्ग का आर्बिट्राज करके? हमने कहा कि माता जी मैं हम्म। पहली दफा बाहर आई। कहती आप पहली दफा ट्रैवल कर रही? हमने कहा, कहती लगता तो नहीं है। अब मैं क्या बोलूँ उसके आगे? फिर एनीवेज हम लोग मॉस्को का एक छोटा-सा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे उस वक़्त स्कूल नहीं हुआ था। तो हाँ। चीज़ें मॉस्को में ह्यूज मॉल, ह्यूज, उनका नाम हम्म। गुम और सुम, दोनों इतने बड़े थे कि आप थक जाते थे सबसे। एस्केलेटर लगे हुए थे, सब कुछ था, पर खाने जी। को कुछ ना मिले। आप गाजर पकड़ो, ऐसे हिला दो, तो नीचे वो सड़ी हुई टपक जाती है। उसकी सिर्फ ओ। ऊपर की खुशबू रह जाती है आपके हाथ में। अच्छा, उन्होंने आपकी तहरीर पे मुझे याद आया, उन्होंने कहा कि वहाँ पे डॉक्टर राय थे, डॉक्टर निगम थे, और एक अरुण कुमार थे। अरुण कुमार थे एंड मतलब डॉक्टर अमजद थे। डॉक्टर अमजद से वहाँ 5 डॉक्टर 7-8 लोग थे, डॉक्टर बॉगडान भी थे, एंड कपल जिनके घर में हम लोग रहते थे। तो हम्म। ओल्गा नाम था उस लेडी का। तो हम लोग करने की, आज ऐसा कीजिए, अच्छा कभी उन्होंने मुझे रेनू नहीं बुलाया, यू ऑलवेज यूज्ड टू कॉल मी मिसेस निगम। मिसेस निगम आज अच्छा। तहरीर बना दीजिए आज। मैंने कहा ठीक है बात है। तो कुकिंग उनको मालूम था कि हम लोग लखनऊ वाले हैं, तो खाना ना बना लेते हैं ढंग का। तो हमने ओल्गा से कहा, "You can just go and do some shopping." And she हाँ। Mataji has asked me to make some, vegetable and rice together. So let's go हाँ। and shop. वहाँ पे तुम विश्वास करोगे, चावल का साइज़ जो मूँग की दाल होती है धुली हुई, हाँ। उस हाँ। साइज़ का जो चावल, मतलब अमेजिंग। दाना बिल्कुल छोटा सा। अच्छा हम्म। खैर वो लेके आए, बाकी जो कुछ सब्ज़ी-वब्ज़ी मिली लेके आए। अब मुझे हम्म। ये ना समझ में आया कि इसमें पानी कितना पड़ेगा? बिकॉज़ हाँ। इतना छोटा चावल हमने पहले देखा ही नहीं था एक्चुअली। सही है। तो हम ओल्गा से बड़ा भुना-भाना, जो यहाँ से मसालों का लेके गए थे हम लोग सब। जो कुछ था अच्छा। सारा भून-भान के तैयार किया। फिर हमने ओल्गा से पूछा कि हाउ मच वाटर शुड आई पुट इन दिस? शी सेड ओके pour more, some more, some more, some more। अब मुझे लगे कि कितना पानी ये चावल लेता है कि वो भरते ही सही है। चला जा रहा है। एनीवेज़ उसको ढक दिया। जब वो पक गया तो हमने कहा देयर इज़ स्टिल वाटर इन दिस, इट इज़ स्ट्रेन इट। अरे हमने कहा हाय भगवान, हम तहरीर बना रहे हैं और हम इसको चावल की वो तरह पास्ता स्ट्रेन कर स्टाइल दें। में उन्होंने बस। हम बहुत कूलली बोली, कहती व्हाट्स द प्रॉब्लम, जस्ट स्ट्रेन इट। हमने कहा हाय भगवान, सारा मसाला निकल जाएगा, स्ट्रेन क्या करें? खैर एनीवेज़ आई वाज़ सो एम्बैरेस्ड, उसको स्ट्रेन करना पड़ा बिकॉज़ द वाटर वाज़, ऑन टॉप, इट वाज़ सो वाटरी, इट वाज़ लाइक अ सूप, तो एनीवे स्ट्रेन कर-करा के उसको ड्राई कर-करा के किसी ढंग से जब चीज़ माताजी को सर्व किया, मैं कहा माताजी मुझे यहाँ के चावल का अंदाज़ नहीं मालूम था। फिर कोई बात नहीं, स्वाद अच्छा है। एंड दे देखिए। ऑल एट, एंड दैट वाज़ सच अ फनी एक्सपीरियंस कि बहुत बहुत दैट वाज़ इन अ वे पुटिंग डाउन माय ईगो कि अच्छा खाना बहुत अच्छा बना रहे थे। लो बेटा आज तो बनाओ खाना अच्छा। तो दैट वाज़ इट, एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। एनी वहाँ पे लेनिनग्राड जैसे ही अमेजिंग। पहुँचे, हाँ। जैसे ही लेनिनग्राड बोलिए। पहुँचे वैसे ही बोली कि यहाँ का खाना जो है, वो क्योंकि ये थोड़ा सदर्न एरिया में है, तो अफ़गानिस्तान और इंडिया से बहुत इन्फ्लुएंस है। तो वहाँ पे कैप्सिकम थी, स्टफ्ड कैप्सिकम।
हम लोग भी कीमे में के साथ बनाते हैं ना कैप्सिकम स्टफ करके। बिल्कुल। तो डॉक्टर डेविड स्पैरो की वाइफ हेस्टा। वो भी, हाँ, Yeah. हेस्टा वाज आल्सो विद अस। तो हमसे बोली कभी आपने हर्मिटाज नहीं देखा और अब हाँ, टाइम बहुत कम रह गया है। तो उन्होंने हाँ, जो अपने प्लेट में था, जो उनके हाथ में खाना था, वो हमारे हाँ। हाथ में रखा। कहती टाइम नहीं है, ये खाते हुए चली जाओ और फटाफट जाओ, नहीं तो बंद हो जाएगा। बट शी ओह! गेव मी व्हाटएवर शी वाज ईटिंग, वो सारा हमारे हाँ, साथ में उन्होंने रख दिया। और हम लोग भी डैन एंड वी सॉ द ओल्ड म्यूजियम एंड द पैलेस एंड एवरीथिंग। उसके हाँ। बाद एक दिन, हाँ, एक दिन हम लोग एक होटल में रुके हुए थे। तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ गई थी माता जी। हुँ, अब करने की मिसेस निगम चाय पियेंगे? तो ठीक है माता जी। अच्छा। गए वहाँ पहुंचे। Can we get tea? Can I know everything is time will be get it? Then we don't know, maybe at 8 o'clock or whatever. मैं 4 घंटे बैठे रहेंगे। फिर आके उन्होंने कहा चुमाते ही कहीं कुछ नहीं मिलता है। और उस कमरे में ये भी नहीं कहीं कोई तस्वीर हो कुछ हो। कहने एक काम करो, वो पुराना बास्केट खोलो, उसमें चाय की पत्ती रखी है। चाय की पत्ती हाँ। निकाल दी गई और कुछ नहीं था, न दूध न चीनी, कुछ नहीं, सिर्फ चाय की पत्ती। कहने गीजर से पानी लेके आओ, उसमें चाय बनाते हैं। तो जो गीजर के पानी से चाय की पत्ती डाल के, और हमारे वाह! पास छन्नी भी नहीं, तो उन्होंने अपना रुमाल दिया, कहने इसमें छान लो। तो एक ग्लास में अरे वाह! उसका रुमाल रख के, उसमें चाय की पत्ती रखी गई और गीजर का पानी उसमें डाल के, एंड दैट वाज द टी विद टी। वॉव! श्रीमाता जी बहुत माने हर एक चीज़ बड़ी प्रैक्टिकली अ, बोलते थे। जैसे पिछली बार जब अंकल से बात हुई थी तो बता रहे थे कैसे फ्रांस में जब पूजा हुई थी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए थाली नहीं थी तो हाँ पूजा वाली श्रीमाता जी ने उसमें खाना उनको दिलवाया इस तरीके हाँ से। हाँ। और भी कुछ वाकये याद है तो आप हम लोग के साथ प्लीज शेयर करिए। अरे भाई आप कितना लंबा इंटरव्यू करेंगे, कोई देखेगा भी नहीं इसको। इतना सब देख इतना अंकल, ये आज के इतना लिए नहीं है, ये 1000 साल बाद के लिए है, डोंट वरी। लंबा। इसमें इसमें मजा ये है ना कि लोग पॉज करके फिर से देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको एक स्ट्रेच में देखना है। ये बात तो है। बताइए बताइए, आपने बिस्मिल्लाह खा वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा? हाँ, बहुत द सुंदर। टॉक द टॉक बिटवीन श्री माता जी एंड बिस्मिल्लाह खान। Shall we Did shall you we see? share it? Shall we share it? Just give me a moment. I'll try and find it. And we do you want to shall we watch it? Yeah? Give me a No, no. moment, please. Have you seen that or not? Yes. Yes, That you आपने should हाँ, circulate to everybody that Bharat Ratna is talking with Adi Shakti. This is the title of that thing. और खान ये साहब ने खुद एक्सेप्ट किया, इतने बड़े सिंगर थे कि आज जाने क्या हो गया, आपकी प्रेजेंस में इतना अच्छा निकल गया। फिर उन्होंने हाँ, एक शेर सुनाया। हाँ। वो था शेर था, राग रसोई पागड़ी जो कभी कभी बन जाए। हम्म। राग मतलब जो वो भजन गाते हैं, वो जो शहनाई बजाते हैं राग। और हाँ, रसोई खाना किसी किसी दिन बहुत बढ़िया बन जाता है अपने आप। एकदम और एकदम। राग राग रसोई पागड़ी, जो पगड़ी होती है डेली पहनते हैं, लेकिन किसी किसी दिन बहुत बढ़िया बन जाती है। ये उन्होंने मदर को सुनाया। तो आज वही हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो मैं यहाँ इन लोगों को देख रहा हूँ कि हाँ, ये, हमको ऐसा लगता है जैसे मैं हिंदुस्तान में बैठा हूँ। ये सब हाँ। लोग क्लासिकल म्यूजिक समझते हैं। वो वीडियो आप सबको दिखलाएंगे, दैट इज वेरी नाइस वीडियो। और इतना कि माता जी उनसे इतना हंस हंस के बातें कर रही हैं, और वो भी हंसे जा रहे हैं, और कि माता जी भी हंसे जा रही हैं। तो इट्स सो ब्यूटीफुल टू वॉच इट अगेन एंड अगेन। एक बार फिर से मुझे जरा उसकी डेट याद दिलाइए। हम अमृता डॉट मैं टॉक आप और मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है, वी शेयर दैट लिंक आपके इस वीडियो के साथ जो है। आप आप यूट्यूब पे तो हैं कि नहीं? यूट्यूब तो आता है ना? हाँ, हाँ, हाँ। यूट्यूब जी, को भेज देता हूँ, भेज दूंगा।
ठीक है. Sushmita, one thing I want to share with you that Yes, since, Auntie, do. since he was in the human form, Yeah. उन्होंने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो कौन है, और ऐसा माया जाल फैला था कि एज यू सेड शी वाज अ फ्रेंड, शी वाज अ सहेली, एंड आपकी हर छोटी जो दिल में बात होती थी उसको बाहर निकल आती थी. और मतलब वी कांट एक्सप्लेन, वी वर इन ऑ, we enjoyed her company. We should look forward कि शिवाजी जी कब आज कब बैठे उनके साथ, और कितनी देर बैठे, सब भगाए ना जाए, सब तक बैठे रहते थे. और कुछ नहीं, न कहीं कभी वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बैठे हैं तो बैठे हैं. और बच्चे भी बैठे हाँ. रहते थे, ये भी नहीं कि वो भी कोई परेशान करे कि भूख लगी कि प्यास लगी कि वॉशरूम जाना, कुछ नहीं, सब मजे से बैठे. और ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम किसके सामने बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं. सही है. तो और कुछ. सुष्मिता जी, जी. जी. इजाजत है आपकी? Yes, and in a moment, Dr. Nigam, I was just reminded of कुछ एक नाम आपने लिए, जैसे डॉक्टर अवधेश नारायण की बेटी की शादी में आप श्रीमाता जी के साथ गए लखनऊ. ये रेणु गई थी, रेणु गई. हाँ, आंटी आप गए. तो डॉक्टर अवधेश नारायण वाज आवर फैमिली डॉक्टर जब हम लोग छोटे बच्चे थे, पर उस समय हमें श्रीमाता जी का आभास नहीं था. We used to live down the road from where Shrimata ji built that house. Beautiful I told that house. earlier also. Yes, so That was the incident when जब मंडप लग रहा था आंगन में उनके, तो श्री हाँ. माता you were sitting on one side, I was on the opposite side. क्योंकि naturally वो friend Avdesh Naran was more like a family friend to her. So I was not here, चिपके नहीं थे श्री माता जी, थोड़ा दूर दूर रहते थे. That was the place where she showed me the Kundalini. That huge pyramid on her head, huge. And she just इशारा किया मुझे, ऊपर देखो ऊपर देखो. And that was the second time when I saw that pyramid on her head. उसके पहले when we were going to Patna, जब उन्होंने, she was sitting on the window side, I was on the outside, और उन्होंने मेरा हाथ दबा के कहा बाहर देखो, ऐसे हाथ जैसे पकड़ के ऐसे दबाते, बाहर देखो, दिखा? हमने कहा हाँ दिखा. तेरी सारी कुंडलियां हैं ये, देखो साथ साथ चल रही है. So twice he showed me Kundalini, one in the flight and one in Avdesh Naran's daughter wedding. वो आंगन में बैठे हुए थे और वो मंडप गाड़ा जा रहा था, बीच का जो खंबा नहीं गाड़ा जाता है शादी में, वो लगाया जा रहा था. पूजा पाठ चल रही थी, उसमें लोटा बांधा जाता है, सब कुछ हो रहा था. एंड देन इशारों में उन्होंने हमें ऊपर दिखाया कि वो देखो. जरा उसको उसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे, क्या देखा आपने पिरामिड ऑफ वाइब्रेशंस कुंडलिनी? Those were little कुंडली लाइक कॉमा, जैसे ओपेक चीज होती है वैसे ओपेक चीज का जेली लाइक, और छोटे छोटे कॉमर्स थे, और बिलियंस आई मस्ट से. एंड इट वाज लाइक अ कैनोपी, सर पे चौड़े से ऊपर जाके पिरामिड बनता है, पिरामिड लाइक एंड जो जैसे शुड नॉट, चिमनी बहुत गलत है, जैसे मच्छर गर्मियों में नहीं, बिल्कुल भन हिलते रहते हैं. They were just shaking, they were just moving around. And they were, I don't know, trillions or millions, I just cannot. It's No, of course beyond you me can't. to give you a count. Yeah. उसके बाद फिर वो किसी से बात करने लगी या कुछ और हो गया, and then everything just vanished. Yes. वाह, इट्स लाइक जैसे कभी कभी हम लोग एक स्थिति में होते हैं, व्हेन यू नो यू आर इन ब्लिस एंड देन द माइंड कम्स, सच में ऐसा है क्या, एंड देन इट डिसअपीयर्स. ऐसा. हाँ, ये भी बात सही. जैसे ये टेंशन दूसरी चीज पे जाता है, तो वो अच्छी चीज वाला टेंशन गायब हो जाता है. This is the real thing. So Sushmita ji, very nice to talk to you. Yes, thank you for joining us and thank you for sharing your
precious memories with Shri Mataji herself. The photo that we see in your background is the first Guru Puja in London in 1977. That puja, that photo of Shri Mataji. Yes. It's really On lovely. 1980 Puja, Guru Puja. 1980. This puja was the 80, yes. In 80, Dr. Rustam brought this photograph for me especially, and since then it is with me. I meditate on it. Beautiful. That is so beautiful. There are many more moments and there are many more memories. I'm sure we'll talk again, and we look forward to talking to you Sure, soon. sure. Thank you so much for joining us. Did you see the video of when Shri Mataji came to our house? No, you haven't shown us. Could you All please right, I'll send it to you. please email it, and in the next video then we can share it. That and the Ustad Bismillah Khan wala. और हाँ। दूसरी बहुत अच्छी चीज आपने बताई आंटी, मजे मजे में जो कायस्तों वाली बात, क्योंकि हमारे छोटे अरे भाई हैं। कायस्तों वाली बात तो हमसे आप पूछिए, मुझको हाँ बताइए ना। जिससे मिलाती sister-in-law थी is the Nigam Kayast from Kanpur. मैं उनको लेके जाता था, देखिए ये डॉक्टर निगम है, यूपी के कायस्थ हैं, हाँ। खाना पीना इनकी जिंदगी है, मौत करनी। काश के लिए पता क्या वर्ड थी? काया में अस्त है। काया में अस्त है। सही, हाँ सही है ये। कभी लखनऊ वाले खाते पीछे लोग हैं, यहाँ कुछ नहीं होएगा। सही है आंटी। So you must be then Actually, related to सीता आंटी अंकल हैं, अक्षय और सौरभ और महिमा के पेरेंट्स। Akshay father is my dear elder brother, Ajay Saxena. Your real brother. Wow. And do He's you know on number then 5. He's on number 5 and number 6. you're number 6. So जो विनय कुमार आंटी हैं, there's a विनय uncle है, वो Geological Survey of India में. His wife is also Vinay. your sister then. No, I don't remember. I don't know. Vinay. मम्मी रुचि इतू। अजय भैया जो थे वो हमसे शुरू में कहते थे अजय भैया, एंड उनसे बड़े एक और अर्जुन भैया, उसके बाद सुमन माथुर है। तो सुमन माथुर और अजय भैया दोनों मुझसे बोलते थे जबकि कोई बात, अरे तुम्हारी माता जी अब कब आ रही है, अरे तुम्हारी माता जी ने क्या कहा, और अरे माता जी टॉक टू मी लाइक दिस, तुम्हारी माता जी, तुम्हारी माता जी, और अल्टीमेटली सब आ गए, सब एवरीबॉडी बिकेम अ सहयोगी। To the extent that we went to Ganpati Pule, you know how many people? My mother, उनके 6 बच्चे, उनके spouses और उनके बच्चे, प्लस हमारे in-laws, हमारी छानिया और उनके बच्चे। तो श्री माता जी कहती, अरे भाई वो निगम फैमिली बहुत बड़ी आई, उसको देखो जगह का पूरी दिलवा देना। तो हमारी माँ कहती थी, Here is this. This would be amazing. This was रवि की शादी के साल हुई, 89 में, तो 88 हाँ 88 में। तो वो तो श्री माता जी, मम्मी कहती श्री माता जी की, अरे मुझे क्यों निगम बना दिया भाई, मैं भी निगम फैमिली में आ गई। अरे निगम फैमिली बहुत बड़ी आई है। और उसमें से एक बहुत मजाक में कहते मम्मी के लिए देखो ये रेड रोड है, मतलब खूब तंदुरुस्त वाला मुर्गा, और उसके पीछे पूरे उनके चूजे चले जा रहे हैं, बिकॉज लाइन ऑफ इट, यू नो, 6 भाई बहन, उनके स्पाउसेस, उनके बच्चे, फिर अरे पूरा खानदान एक तरीके से ना, पूरा खानदान। अब तो एक्सटेंडेड फैमिली भी आ गई ना। हाँ जैसे अरे वाह, राजीव कुमार जो है ना, हाँ yes I've heard of him. I think मम्मी शायद उनके यहाँ की हैं, but I don't know them directly, but yes I've heard. राजीव कुमार वाइफ इज माय फर्स्ट कजिन, माय मामा जी डॉटर। तो उसके बाद फिर वो मामा के बच्चे और मौसियों के बच्चे, और ये सारे धीरे धीरे करके सब आ गए। तो हाँ, निगम फैमिली बिकेम सो ह्यूज कि जिसको देखो। उसमें एक और बहुत मजेदार किस्सा हुआ था कि मम्मी had never gone to school, but the real word is that she was very wise. मतलब जिसको कहते हैं कूट wisdom, कूट के भरी।
तो वहाँ पे and she could understand English, but she could not speak. तो वहाँ पे सब लोग इतनी बात हुई निगम फैमिली की कंसल्ट करने में, तो एक कोई सहयोगी आया, फॉरेनर था, तो आके भैया से पूछा, कहते यू ऑल आर यू ऑल रिलेटेड, वी आर ऑल रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो कहते एंड शी इज योर मदर, हाँ, तो उसने पूछा सेम फादर सेम मदर, बाबा रे उसने ये बोला भर था, मम्मी तो बिजल गई, कि मुझे गाली देना क्या ये, because for her saying कि सेम मदर सेम फादर, मतलब उसके लिए इतनी ताज्जुब की बात थी कि सेम मदर सेम फादर, 6 बच्चे खड़े हुए लाइन में और सब एक साथ गणपतपुरे में, तो दैट वाज मम्मी Amazing. टुडे कि हमारे फादर इन लॉ he passed away at the age of 93, but before he left this world, I think 3-4 साल पहले, और वो बहुत ही staunch आर्य समाजी थे, गायत्री मंत्र रोज हवन और गायत्री मंत्र ये सब होता था, but he also got into सहयोग, बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज में वो भी सहयोग को उन्होंने एक्सेप्ट किया। That's amazing. It's a You know, उसका विशेष उसके लिए शब्द नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। माँ मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बंधु के साथ श्री माता जी की पूजा करना, अर्चना करना, उनके साथ जो समय बिताना, इट्स जस्ट वेरी स्पेशल, I वेरी know, I वेरी, know. व्हाट अ And ब्लेसिंग। what enamored him the most was because he was again ये जो पुराने लोग थे, they are full of wisdom and so यस honest. I can't tell you. जब मेरा यस काम शुरू में थोड़ा सा सेटल हुआ and in fact जब चीजें सेटल होना शुरू हुई 83-84 तक, तो the only thing he used to say was कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पैर मजबूत हो जाए बिजनेस में, हमने कहा हो जाएंगे बाबू, धीरे धीरे हो जाएंगे, कहते मैं चाहता हूँ मेरे बेटे का घर बच जाए, मतलब सो ऑनेस्ट अबाउट इट, तुम काम करो ना करो मेरे बेटे का घर बच जाए, हाँ, उसका so घर बचा honest, रहे, blatant, हाँ, हाँ, so honest about it, and it is true also. His attachment with his son will be much more than what he'll think about me. But in his last ages, 3, 4, 5 years, what he felt was he saw the transformation in Suresh. And it was so evident. It was so evident. He said कि मैं अब मान ही नहीं सकता कि इनमें कोई शक्ति नहीं. वाह, That changed him. इतना conditioned आदमी जो था at the age of 88, 89, he changed because he saw his son completely transformed. whoa, what a miracle. I mean, it Yeah. seems a miracle, but it's just nothing for Shri Mataji, isn't it? Just so amazing, our lives. So So fortunate. ultimately he said कि भैया कुछ तो बात है और बहुत बहुत ही बड़ी बात है, इनको छोटे भैया बोलते थे घर में सब लोग, कि अच्छा, अगर छोटे भैया बदल गए तो भाई कोई जरूर बात है, और एंड देन ही स्टार्टेड, हम लोग का ट्यूसडे को मेडिटेशन होता था, तो फिर उन्होंने बैठना शुरू कर दिया, एंड ही स्टार्टेड इंक्वायरिंग मोर अबाउट श्री माता जी, और पूजा में जाते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब he started showing interest in all these things, and he wow. also came. So that was again a blessing. Big blessing, big blessing. Uh, In our next conversation that we have, would you please talk about Uncle that you had mentioned, and some other stories that we'd like to take from there from today's session. But in the last one, you had mentioned how there was a formal agreement between the government of India and the government of Russia, USSR. वो वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप हमको ईमेल कर सकें तो बहुत अच्छा होगा. So when you are talking, we can show it along with the 2 videos that you have mentioned here. Okay? Right. So Okay. बहुत बहुत धन्यवाद Done. आपका. Thank you so much. And all thanks to Srimati ji, who is the doer Oh, and thanks the to Shri Mataji. Thank you very much. So nice of you. Thank you very not at much. all. And our love and regards from Shankar ji and the family to you both and to I everyone love there. and regard to you and Shankarji and your entire family. Thank you so much, Auntie, Uncle. Jai Srimati ji. Jai